Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for computer science with Python. In our previous video, we have discussed the basic introduction of string and how to traverse a string and how to print the string in a reverse. If you have not watched that video, I will provide you the link of that video in my description also. In this video, we will start with the string operators. For string, we are having basically two types of operators, plus and multiply. And now you will think that these plus and multiply operators are arithmetic operators. Yes, but if only arithmetic operators if we use these operator with numbers, integers. But if we use these operators with string, they are having the different meaning. For example, this plus, this operator is known as string concatenation operator. Concatenation operator is used to combine the strings. अगर मेरे पास multiple strings हैं और मुझे उनको combine करना है, concatenate करना है, तो then we have to use this plus operator. And next is multiply. This is used for replication, means repetition. कि सपोज मैंने अपना नेम 10 टाइम्स लिखा, ठीक है, मैंने अपना नेम पहले 1 टाइम लिखा, अब मैं आपको बोलूं कि नहीं इसको मुझे 100 टाइम्स लिखना है, तो आप जस्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100, तो आपका नेम क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दीज ऑपरेटर्स. अब मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स ली, टी एंड देन पोट. व्हाट विल इट डू, इट विल कंबाइन दीज 2 स्ट्रिंग्स एंड रिजल्ट इन अ सिंगल स्ट्रिंग. Then 1 plus 2, अब यहाँ पर 1 and 2 are your string, not integers. So it will result into 12. Then 1, 2, 3 plus ABC, so it will return 1, 2, 3 ABC. The most important point to be noted here, you cannot add a number and string using plus. कि means if we are using string concatenation, तो plus operator के साथ दोनों क्या होनी चाहिए, string. एक स्ट्रिंग हो और एक इंटीजर हो तो इट विल रिजल्ट इन अ एरर. लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. नाउ आई हैव ओपन माय पाइथन शेल. सो हियर आई एम राइटिंग, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिया पाइथन और प्लस सिंबल यूज करके मैंने दूसरा स्ट्रिंग लिया 1 to 4. सो इट विल कंबाइन द स्ट्रिंग. यू कैन स्टोर द स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल ऑल्सो. सपोज आई एम राइटिंग माई नेम स्वाति and in second variable I am writing my surname. So when I will write S1 plus S2, it is concatenating the string. अगर आपको बीच में प्लस मीन्स यहाँ पर स्पेस भी चाहिए तो वन मेथड इसकी आप यहीं पर स्पेस दे दो. अगर आपने वहां पर नहीं दिया है तो what will you write, S1 plus this, within quotes you have, I have given blank space, then this. You can even store the result in a variable and then print that also. ठीक है, when I will print S3, this is my Python, membership operator, string operator, that is plus symbol, concatenation operator. Next is my string replication. Replication means कि अगर आपको कोई string को कितने times repeat करना है, then we will use this replication operator. Suppose here I have written 5 into, within quotes I have written my string @ So what will it do? It will print the string 5 times. Doesn't matter कि आपने integer पहले लिखा है या string पहले लिखा है. आप string भी पहले लिख सकते हो, आप integer भी पहले लिख सकते हो. But condition क्या है, आपने एक integer लेना है और एक क्या लेना है, string. Read this point, note. We cannot multiply string and string using multiply operator. Means जो हमारा multiply operator है उसमें हम 2 strings जो है नहीं ले सकते. Only number into number, that is for simple multiplication, or string into number is allowed. ठीक है, let's execute this. अब मेरे पास string में क्या है, S1. अब मेरा नेम है. अब मेरे को अगर कोई कहे कि I want to print this name 50 times, I will simple write S1 into 50 within the single statement. ये मेरा काम कितना easy हो गया.
ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली और दूसरी भी स्ट्रिंग ले ली. नाउ इट विल शो एरर कि कांट मल्टीप्लाई द सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग. क्योंकि अभी मैंने बताया जो हमारा रेप्लिकेशन ऑपरेटर है इट विल ओनली वर्क विथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग. अगर मैं दो नंबर्स लिखूं 12 प्लस दिस, तो 1 2 3 4, क्योंकि टू स्ट्रिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, कंकेटिनेट. बट अगर मैं एक स्ट्रिंग ले दूं और एक इंटीजर ले लूं तो देन इट विल शो एन एरर. ठीक है, अब नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल टू क्लियर योर कंसेप्ट. नाउ सपोज इन स्ट्रिंग 1 आई हैव टेकन 1 2 3. एक सेकेंड स्ट्रिंग मैंने ली, उसमें लिखा 4 5 6. S3 I have taken ABC and S4 I have taken DEF, let's suppose. ठीक है, तो now when I will print S1 plus S2, दो नंबर्स को मैंने ऐड किया है. S1 and S2 are my integers. तो अगर मैं टू नंबर्स को ऐड करूंगी तो इट विल रिजल्ट इन अ प्रॉपर एडिशन. बट अगर मैं टू स्ट्रिंग्स को ऐड कर रही हूं तो इट विल कंकेटिनेट. ठीक है, S3 प्लस S3 है तो उसी को कर देगा. इफ आई विल राइट S3 प्लस S4 देन इट विल कंकेटिनेट दीज टू स्ट्रिंग्स. अब नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन S1 into S3. S1 मेरा क्या है 123 और S3 क्या है मेरी स्ट्रिंग ABC. तो ये ABC को कितने टाइम्स दिखाएगा, 123 टाइम्स. और अगर मैं लिख दूं S3 into S4 तो इट विल रिजल्ट एन एरर, क्योंकि S3 और S4 टू स्ट्रिंग्स को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती. ठीक है, तो दीज वर माय स्ट्रिंग ऑपरेटर्स प्लस मीन्स कंकेटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स. नाउ नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप मीन्स it will check the presence of character in a string. We are having two membership operators, in and not in. Both operators will check the presence of character कि वो character जो है मेरा उस string में है या नहीं है. If it is present, तो then it will return true. If it is not there, then it will return false. Let's see the example here. A in Python. ठीक है, मेरी जो स्ट्रिंग है जो मुझे चेक करना है A कि वो उस स्ट्रिंग में है या नहीं है, तो A is not in the string Python, तो it will return false. Next A in Java. This is true because जो मेरी स्ट्रिंग है Java वो उसमें आ रहा है A, तो it will return true. Next per in operators PER आ रहा है स्ट्रिंग में तो it will return true. Next MEM in membership MEN. अब MEN इसमें नहीं आ रहा तो इट विल रिटर्न फॉल्स. नेक्स्ट MAN इन मैनिपुलेशन. अगर आप मैनिपुलेशन को ध्यान से देखो MAN स्टार्टिंग में आ रहा है बट M क्या है यहाँ पर जो मैं सर्च कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कैपिटल, और जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या है स्मॉल में है, तो दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न फॉल्स. नॉट इन का एग्जांपल देखो PRE प्रेजेंस में नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं किससे चेक कर रही हूँ कैपिटल P से, तो इट विल रिटर्न ट्रू. लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. सपोज मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ली y इन पाइथन. लेट्स यूज डबल कोट. अब y मेरा आ रहा है पाइथन में, आप यहाँ पर लिख सकते हो y एंड t ऑल्सो, तो इट विल रिटर्न ट्रू क्योंकि y और t इज देयर इन द स्ट्रिंग. Now see if I will write Y, T and O this, तो it will return false कि Y, T और O मेरे सेपरेट तो आ रहे हैं, बट ये आपका क्या चेक करता है consecutive characters कि Y, T और O क्या मेरे साथ में आ रहे हैं, नहीं, तो that's why it will return false. If I will write Y, T, O not in Python, तो it will return true क्योंकि Y, T, O जो है मेरा उस string में नहीं है. तो in this way our membership operators will work in and not in. So now next is our comparison operators.
जैसे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स इंटीजर्स पर वर्क करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सेम वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेटर्स ऑन स्ट्रिंग आल्सो। इसमें जो कंपैरिजन होगा दैट विल बी बाय कैरेक्टर because string is a sequence of characters, and when we are going to compare the operators we will get the comparison character by character. Let's take an example here. str1 equals to program and str2 equals to Python. So what will it do? First it will compare the first character, means if I am comparing first two strings, so small p and small p both are equal, so then it will compare the next character. R will be compared to Y. अब R और Y जो है दोनों इक्वल नहीं है, तो it will return false. अगर मैं ग्रेटर देन और लेस देन की बात करूं तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉल है? इंटीजर्स में तो पता लग जाता है. इफ आई विल राइट 5 लेस देन 8, तो इट नोज कि 5 इज लेस देन 8, तो इट विल रिटर्न ट्रू. बट अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं कैरेक्टर्स की, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्लाइड, वॉच दिस केयरफुली, कि हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं ईच कैरेक्टर इज हैविंग द ऑर्डिनल वैल्यू और यू कैन से द स्काई कोड. आपको जस्ट ये स्टार्टिंग का ध्यान रखना है. कैपिटल ए, जो मेरा कैपिटल ए है उसकी स्काई वैल्यू है 65. ऐसी कैपिटल बी की क्या हो जाएगी? 66. कैपिटल सी की 67. इस तरीके से. तो अगर आपने कैपिटल जेड की चेक करनी हो, कैपिटल ए की क्या है? 65. टोटल अल्फाबेट्स आर 26. तो अगर कैपिटल ए के 65 है तो 65 में इफ आई विल ऐड 25, तो आई विल गेट द स्काई वैल्यू ऑफ 90. सॉरी, कैपिटल जेड. एंड लाइकवाइज वी आर हैविंग द स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. Small a is having the sky value 97. If you will add 97 plus 25, तो then you will get the sky value of small z. आप अगर स्टार्टिंग की भी ध्यान रख लो, कैपिटल ए 65, स्मॉल ए 97 एंड 0 48. अगर आपको ये ध्यान नहीं रहती है तो वी आर हैविंग टू इनबिल्ट फंक्शंस, ORD एंड char. ORD stands for ordinal. अगर मैं इसमें कैरेक्टर लिखूं तो ये मुझे उसकी स्काई कोड यानी कि जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा. कैर अगर मैं फंक्शन यूज करूं, CHR, स्पेलिंग इज नॉट CHAR, इट्स CHR. तो देन इट, इफ आई विल राइट 97, तो इट विल रिटर्न स्मॉल a. लेट्स डू दिस फंक्शंस फर्स्ट. सो हियर आई एम राइटिंग ORD और अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल Z. तो it will return 90. If I will write ORD and then capital B, so it will return 66. Means it is returning the ordinal value. If I will write ORD 1, so then it will return 49 because 0 की ordinal value क्या है बेटा? 48. CHR फंक्शन जस्ट इसका रिवर्स है. इसमें अगर मैं 65 लिखूं तो इट विल रिटर्न कैपिटल ए. कि अगर मुझे चेक करना हो कि 65 जो ऑर्डिनल वैल्यू है उसकी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कौन सा है, अगर मैं रैंडमली लिख दूं 70, अब मुझे नहीं पता 70 किसका है, तो आई विल गेट F. तो इस तरीके से जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करेगा. अब देखो अगर मैं यहाँ पर ले लूं str2 ग्रेटर देन str3. अब str2 और str3 के फर्स्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे. Let me take a pointer here. ठीक है, अब जो आपका STR में फर्स्ट है स्मॉल p, इट विल बी कंपेयर टू कैपिटल P. तो स्मॉल p की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी क्या है? ग्रेटर. क्योंकि अगर मेरी कैपिटल A की वैल्यू क्या है? 97 और स्मॉल a की वैल्यू 97 और कैपिटल A की वैल्यू क्या है? 65. तो दैट मीन्स जो मेरे स्मॉल कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर. तो अगर मैं लिख रही हूँ स्मॉल p str2, पहले फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर करेगा. कैपिटल P इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल p इज ग्रेटर देन कैपिटल P, तो इट विल रिटर्न ट्रू. इसी तरीके से अगर हम देखें str3 लेस देन str1, तो str3
ये फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल P और ये है स्मॉल p. अब कैपिटल P की वैल्यू लेस होएगी स्मॉल वाले से, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग ट्रू. लेट्स डू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रैक्टिकली. आई हैव ओपन माय पाइथन आइडियली. अगर मैं यहाँ लिख दूं a डबल इक्वल्स टू a, तो इट विल रिटर्न ट्रू. इफ आई विल राइट a लेस देन a, तो व्हाट विल इट डू? कंपैरिजन ऑन कैरेक्टर बेसिस, कि पहले फर्स्ट चेक करेगा बोथ आर इक्वल, तो वो नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेगा वो भी इक्वल है, फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा b. तो क्या मेरी b की जो स्काई वैल्यू है स्मॉल a की क्या होती है 97, तो b की क्या हो जाएगी 98. तो 98 इज लेस देन 97, तो दिस इज फॉल्स. सो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग फॉल्स. इस तरीके से आप अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को और एक्सप्लोर कर सकते हो. I hope you have understood the concept now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. In our next video, we will discuss the string slicing. Till then, keep watching, keep studying.